ایمان ہے اگر ہم اللہ کو ایک جانتے ہیں، یہی ایمان ہے اگر ہم اس رب کو ایک جانتے ہیں تو ہم اور آپ کامیاب ہیں۔ لیکن اگر اس ایمان پر ہم نہیں آتے، اس ایمان سے رشتہ توڑتے ہیں، تو بس یہی چیز ہے جو ہم غیروں کے سامنے جا کر عبادت کی جائے۔ آئیے دیکھیے وہ اللہ ایک ہے اور اس نے یہ حکم دیا ہے، لوگوں تم اس سے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ایمان کو تم بچاؤ۔ جب تم ایمان بچاؤ گے تم کامیاب رہو گے۔ ایمان بچانے کی کوشش کرو، ہاں ایمان بچاؤ، تم کامیاب رہو گے۔ لوگوں دیکھو اس اللہ کو ہم کیوں نہ مانیں، اس اللہ کی عبادت ہم کیوں نہ کریں، جس کی عبادت ہم کیوں نہ کریں، جس کی کتاب یعنی اللہ کی کتابیں کھول کھول کر لوگوں کو اعلان کر رہا ہے، لوگوں کو پکار رہا ہے، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہاں عدالت میں جس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے، بھگوت گیتا، یہ وہ کتاب ہے، ہندو مذہب کی سب سے پوتر کتاب ہے، اس کتاب نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ ایمان کو بچاؤ، ایمان کی طاقت کو تم بچاؤ، ایمان سے تم رشتہ نہ توڑو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو۔ اس اللہ نے تمہیں پریشانیوں سے بچا رہا ہے، اس اللہ نے تمہیں تمام کے تمام چیزوں سے بچا رہا ہے، اس اللہ سے تم رشتہ توڑ رہے ہو۔ آئیے دیکھیے اس بات کی گواہی دے دیے، نتس سے پرتماست، یعنی اس ایشور کا کوئی پرتما نہیں ہے، اس اللہ کا کوئی اسٹیچیو نہیں ہے۔ اوم نراکارم مست نیہ آکارم مست، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ نیہ پتاست نیہ پترم مست، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ نیہ پتاست، اس کا کوئی باپ نہیں، پترم مست، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن نے بتا دی ہے، یہی وہ بات ہے جو قرآن کریم نے بھی بتا دی ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا اولاد نہ وہ کسی کے اولاد ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، وہ اکیلا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ہم پریشانی میں پڑتے ہیں، ہم تکلیفوں میں جاتے ہیں، اسی رب کو پکارتے ہیں، اسی اللہ کو پکارتے ہیں، پھر ہم اس اللہ کو اعتراض کر کے، اس اللہ کو ناراضگی میں ڈال کر ہم رشتے کو یعنی اس ایمان سے رشتہ کیوں توڑے۔ آئیے دیکھیے مہا بھارت اٹھائیے، مہا بھارت کے اندر بھی یہ بات بتا دی گئی ہے، نرپسہنداس داسی نرپتی پویترن ترنی پسان، نرپسہنداس داسی نرپتی، یعنی اس اللہ کو دیکھو وہ نرپسہنداس ہے، یعنی تمہیں پیدا کیا ہے اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر تمہیں بسایا ہے، پھر اس اللہ سے تم رشتہ توڑ رہے ہو۔ نرپسہنداس داسی نرپتی، یعنی اس اللہ نے امیر کو غریب کر دیتا ہے، غریب کو امیر کر دیتا ہے۔ بڑے آدمی ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، جس کے پاس مالوں کا کوئی کمی نہیں، وہ ارب پتی ہے، دن میں وہ لاکھوں روپیہ کما رہا ہے، لیکن پل بھر میں اسے دیکھنے کو مل رہا ہے وہ غریب بن جاتا ہے۔ دوسروں کے گھر وہ کمانے کے لیے جا رہے ہیں، دوسروں کے گھر وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ کچھ کما لوں، وہ مجھے کچھ پیسہ دے دے میں امیر بن جاؤں۔ یہی بات مہا بھارت نے بھی بتا دی ہے، نرپسہنداس داسی نرپتی، یعنی وہ امیر کو غریب کر دیتا ہے، غریب کو امیر کر دیتا ہے۔ داسی نرپتی پویترن ترن ہی پسان، یعنی دیکھو اس اللہ نے، اس ایشور نے، اس پرماتما نے یعنی چھوٹے تالاب کو بڑے تالاب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ اس بستی میں رہتے ہیں، گھر کے پاس ایک ندی ہے اور اس تالاب ہے، اس تالاب میں باڑھ آ کر آپ کے گھر بار کو بہا لے جاتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک میں آپ نے دیکھا کیا ہوا، بہت سارے لوگ مر گئے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اس نے کبھی دل میں یہ خیال بھی نہیں کیے کہ میں مر جاؤں گا، ہمارے گھر بار جو بھی ہے تمام کے تمام چیز برباد ہو جائے گی، اس نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا۔ لیکن یہ غیروں کی کتاب نے بھی یہ دعوت دی ہے، غیروں کی کتاب نے بھی بات بتائی ہے کہ نرپسہنداس پویترن، اس تالاب کو، چھوٹے تالاب کو بڑے تالاب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اے انسانوں تم کیا چاہتے ہو، اے مومنوں تم کیا چاہتے ہو؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس ایشور کے بارے میں یہ بھی بات کہہ دی ہے، اس اللہ کے بارے میں بھی بات بتا دی ہے کہ جب تم تکلیفوں میں پڑتے ہو، جب تم پریشانی میں پڑتے ہو تو اس اللہ کو پکارتے ہو، اس رب کو پکارتے ہو جس نے آسمان و زمین پیدا کی، جو سروگلت نرلیفتا تاہ مہیما کو کہ سنچیپا جا کے نام ترت سنسارا جا ہی نام دکھ سکھ سہارا، یعنی جب تم تکلیفوں میں پڑتے ہو، جب
जब तुम परेशानी में आ जाते हो, जब परेशानी है मैं परेशानी में पड़ गए, उस अल्लाह को पुकारते हो। जाहिराम दुख सुख सहारा, यानी उस अल्लाह को दुख और सुखों में पुकारते हो। हम इंसान हैं, परेशानी में हैं फिर भी अल्लाह को पुकारते हैं, तकलीफ़ों में है फिर भी अल्लाह को पुकारते हैं, खुशहाल है तब भी अल्लाह को हम पुकारते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने भी बताया है, अल्लाह के नबी ने भी बात बता दी है, ऐ लोगो जब तुम खुशहाल रहो तब भी अल्लाह को पुकारो, परेशानी में रहो तब भी अल्लाह को पुकारो। ये अगर ये काम तुम करते हो, अगर इस मामले पर तुम हो तो तुम कामयाब हो जाओगे। एक ब्रह्मत की तिरंगा, वो एक ही ईश्वर के, वो एक ही परमात्मा है, वो एक ही अल्लाह है, वो एक ही ईश्वर के, ये कि अल्लाह है, उसके साथ कोई नहीं। एक ब्रह्मत्यान की तिरंगा, और उससे सारे ईश्वर, सारे जितने भी देवी देवताओं को पुकारे जाते, हमारे मुसलमान दरगाहों पे जाते हैं, उसको भी अल्लाह ने पैदा किया है। हमारे पड़ोसी यानी हमारे दिल के करीब के रहने वाले वो लोग, हमारे मुल्की भाई, वो भी जाते हैं स्टेच्यू के सामने, वो भी अल्लाह को पुकारते हैं। उसे अल्लाह ने बनाई है, उसको भी अल्लाह ने बनाई है। और आपको क्या बता दूँ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद लोग 360 बुतों की इबादत करते थे। देखिए एक ब्रह्मत्यान की तिरंगा, वरन वरन संसार पंगा, तामाया देवता भायु, ऐ लोगों उन तमाम लोगों की इबादत, तमाम स्टेच्यू की इबादत करना छोड़ दो और उस अल्लाह को पुकारो, उस रब को पुकारो जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, इस धरती को बनाई है। क्यों तुम जाते हो, हमारी किताब कुरान उठाइए, अल्लाह ताला ये खोल खोल कर बयान कर रहा है। जब तुम परेशानी में पड़ जाओ तो अल्लाह को पुकारो, तुम तकलीफ़ों में तो अल्लाह को पुकारो। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नास, है इंसानों दुरिबा मसलन, अल्लाह एक मिसाल बयान कर रहा है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने किसी मोमिनों को मुखातब करते हुए नहीं कहा है, ईमान वालों से नहीं कहा है, बल्कि नास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तमाम के तमाम दुनिया वालों को पुकारा और पुकारने के बाद कहा या अय्युहन्नास, है इंसानों, है दुनिया में बसने वालों, है पूरी दुनिया की संसार में बसने वालों, सुन लो। अल्लाह उसके बाद फरमाते इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, यानी अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम पुकारते हो, जिनसे बेटा बेटी तलब करते हो, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। इतनी ताकत उसके अंदर नहीं है कि वो मक्खी पैदा करके दिखाए। वला विस्तमाउ लहू, सारे लोग इकट्ठे हो जाए, सारे लोग जमा हो जाए और मक्खी पैदा करना चाहे तो मक्खी पैदा नहीं कर सकते। इतनी ताकत उसके अंदर नहीं है कि मक्खी पैदा करके दिखाए। उसके बाद फरमाया मांगने वाला भी कमज़ोर। और ये बात सुन लो, जो चढ़ावे उसके सामने चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, उनमें से अगर थोड़ी सी चीज़ मक्खी लेकर उड़ गई, मक्खी भाग गई, तो इतनी ताकत उसके अंदर नहीं है कि वो चीज़ छीन कर दिखाए, इतनी ताकत उसके अंदर नहीं है कि वो चीज़ अपना कर दिखाए, नहीं, इतनी ताकत उसके अंदर नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं मांगने वाला भी कमज़ोर और जिससे मांगा जाता वो भी कमज़ोर से मांग रहा है। और आपको बता दूं, ताज्जुब की बात है, हमारे देश के यानी महात्मा गांधी जी ने भी ये तालीम दी है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। महात्मा गांधी जी ने भी ये तालीम दी है। आइए देखिए 1924 के अंदर, 1924 में क्या हुआ, उसके पास यानी वो किसी जगह पर पहुँचे तो एक माँ बाप अपने एक लौता बेटा को लेकर परेशान हो जाता है, तकलीफ़ों में दोनों पड़ जाते हैं। फिर पढ़ने के बाद वो ये सोचता है चलो डॉक्टरों के पास, तो हम दोनों गए बच्चों को लेकर, फिर भी कोई ठीक नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई कुछ बता नहीं रहा, क्या किया जाए। चलो महात्मा गांधी जी के दर्शन करते हैं और जो पानी उसका पैर धोकर लाएंगे बेटों को पिला देंगे, बेटे बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, बेटे बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। इस बात को लेकर महात्मा गांधी जी के पास वो मियाँ बीवी, वो शौहर और बीवी दोनों पहुँचते हैं, पैदल चल कर आते हैं और आकर लोगों से कहता है लोगों देखो मुझे छोड़ दो। तकरीबन 10 दिनों से पैदल चल कर आ रहे हैं और सिर्फ महात्मा गांधी जी से
देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। हम लोगों को छोड़ दीजिए, रोकिए नहीं, उन लोगों को रोका नहीं, वो आगे बढ़े। और बढ़ने के बाद महात्मा गांधी जी ने जब ये खबर सुनी तो कहा उन लोगों को भेज दीजिए महात्मा गांधी जी के पास। वो दोनों आ गए और आने के बाद उन दोनों से कहा क्या हुआ, क्यों आए हो? तो वो मियाँ बीबी दोनों बता रहे हैं कि इसलिए आया हूँ कि मेरा एक लौता बेटा है, मेरे बेटे के अलावा कोई और नहीं है दुनिया में, कोई बेटा बेटी नहीं है और ये बीमारियों में मुब्तला है। मैंने डॉक्टरों के पास गया, मैंने तबीबों के पास, बहुत सारे लोगों, हाकिमों के पास गया, लेकिन उन लोगों ने बताया अब दवा की ज़रूरत नहीं है, दुआ की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा चलो आपके दर्शन के लिए आ गए और आपका पैर धोकर जो पानी है मैं अपने बेटों को पिला दूंगा। काश कि वो भगवान, वो ईश्वर ठीक कर दे हमारे बच्चे को। महात्मा गांधी जी ने सर पकड़ लिया और कहने लगा अरे क्या हो गया, मैं इंसान हूँ और इंसान हूँ और इंसान का पैर धोकर इंसान को पिलाया जाए और इंसान ठीक हो जाए, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता है कि इंसान का पैर धोआ और धोने के बाद वो पानी एक इंसान को पिलाया जाए, ठीक नहीं हो सकता। फिर वो मियाँ बीबी, शौहर बीबी दोनों को तकरीबन आधा घंटे तक सारी बातें बताई, 30 मिनट तक सारी बातें बताई कि उस अल्लाह के पास जाओ, यानी उस अल्लाह के दरबार में जाकर, उस ईश्वर के सामने जाकर पुकारो, उस अल्लाह को पुकारो, उस ईश्वर को पुकारो, उस रब को पुकारो, उस मालिक को पुकारो और उससे दुआ करो। डॉक्टरों के पास जाओ और जाने के बाद उनसे दवा ले लो और दवा लेकर तुम बैठो नहीं, तुम तो माँ बाप हो, तुम तो बेहतर हो, जाओ उस अल्लाह से दुआ करो, यकीनन अल्लाह ताला तो तुम्हारे बेटी की बीमारी दूर कर देगी। हाँ, बीमारी नहीं रहने वाली है, इसलिए जाओ ईश्वर को पुकारो, जाओ उस अल्लाह को पुकारो। महात्मा गांधी जी ने भी ये तालीम दी है। जब इंसान अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा करने लगे, किसी और के सामने झुकने लगे, उसने ये समझ लेना है कि इसने ईमान से रिश्ता तोड़ लिया, इसने ईमान से रिश्ते को नहीं रखा, इसने ईमान से रिश्ते को तोड़कर किसी और के साथ, किसी और के मालिक बना बैठा है। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को देखिए, आसिया जो ईमान वालों के लिए नमूना है, लेकिन ये फिरौन के घर में, फिरौन की बीवी है, ये ईमान लाती है। फिरौन ने कहा कि नहीं मेरी बीवी, तुम ईमान क्यों ला रही हो? अरे मुझे रब मानो, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? तुम्हारे पास न खाने को कमी है, कोई चीज़ की कमी नहीं, बस छोड़ दो। लेकिन आसिया ने देखा ईमान ये एक कीमती दौलत है, उसने फिरौन को छोड़ दिया, उसने घर बार को छोड़ दिया, इसके पास मकान और जायदाद की कोई चीज़ों की कमी नहीं। इसने क्या किया? ईमान से रिश्ता जोड़ के रखा, ईमान से रिश्ता नहीं तोड़ा। यहाँ तक कि फिरौन ने उनके हाथों में कीले ठुकवाए, लेकिन उसने ईमान से रिश्ता नहीं तोड़ा। मेरे भाइयों, आप भी ईमान को बचाइए, किसी दरगाहों पे जाने वालों को बताइए कि आप छोड़ दीजिए, आप दरगाह पे ना जाए, मुसलमान है और उसे ये दावत दीजिए कि आप आ जाइए। कोई गैर मजहबी लोग हैं, उनको इस्लाम का दावत दीजिए। अभी क्या हुआ, डॉक्टर जाकिर नाइक जब उस मैदान पर पहुंचे, उसने दावत दी, लोगों के इस्लाम के बारे में बताएं, तो हमारे इस मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया, पेट में दर्द पैदा हो गया और वो उसको क्या कह रहे हैं, ये भगोड़ा है, ये मुल्क से इसको भगाया, ये भाग कर गया है। मैं कहना चाहता हूँ इसको भगोड़ा ना कहो, ये हमारे मजहबी लोग हैं, हमें मजहब पर और दीन की दावत देते हैं, सैकड़ों लोग इनकी बातों पर अमल करते हैं और तुम भगोड़ा कहते हो। अगर एक घर में 10 लोग रहे और उस पर जुल्म किया जाए एक भाई पर, तो ये 100% है वो निकाल कर चले जाएंगे। इसी पर उस पर जुल्म किया गया, वो निकल कर चले गए। आप उसको गाली ना दें, मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग गाली ना दें और आप बचें और वो बात बताएं जो लोगों एकता रहे, इस मुल्क में सब लोग मिलजुल कर रहे। मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोग ईमान से रिश्ता जोड़े, ईमान से रिश्ता ना तोड़े। अगर आप ईमान से रिश्ता तोड़ रहे हैं तो आप नाकाब है, आप बर्बाद है। ईमान से रिश्ता